Anyway, so what we are discussing? We are discussing about the introductory section of immunology, right? In last class, we had discussed about three main terminology rather than four. One is immunity, another is immunosystem, immunology, and immunoresponse. Okay, four terminologies we had discussed about that. Let me remind you again. Immunity means it is the ability of the host, it is the power, okay, it is the strength of the host towards the host for towards protection from infectious disease. Clear? Protection from infectious disease. ओके किसको हार्ट अटैक हुआ मतलब बोलते नहीं उसको इम्यूनिटी कम है प्लीज, क्योंकि हार्ट अटैक देन आपका क्या बोलते हैं ब्लड में शुगर बढ़ जाना, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इम्यूनिटी, वहां पे इम्यूनिटी वर्ड यूज भी नहीं होंगे। एम आई क्लियर? इन्फेक्शियस डिसीज, बी क्लैरिफाइड, बी सर्टेन, इन्फेक्शियस डिसीज, otherwise any disease you cannot be. Of course you get the mark, of course you get the score when you are writing in the exam. Immunity means it is the ability of strength to fight against a disease. Of course I will give you the mark, but the exact definition is infectious disease. Okay, वहां पे आपको मैच्योरिटी लेवल पता चलेगा, पढ़ेगा ना बोले हाँ इसको पता है एग्जैक्टली चीज क्या है। Got it? So that is immunity. What is the immune system? The cells, molecules, organs, tissues which were working for immunity. ये इम्यूनिटी का पीछे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो सिस्टम एक है बॉडी में लोग काम कर रहे हैं, मतलब क्या होता है वो इधर मॉलिक्यूल होंगे, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा, कोई सेल होंगे, कोई टिश्यू होंगे, कोई ऑर्गन होंगे, या कोई टोटल सिस्टम। सो व्हाट इज इम्यून सिस्टम? द सेल्स, molecules which were working for the immunity, that is your immune system. What is immunology? Study of immune system. Study of immune system equal to immunology. What is immune response? ये जो सेल इम्यूनो सिस्टम जो सेल मॉलिक्यूल रिलीज करता है ना, इम्यूनो सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हाट इज इम्यूनो सिस्टम? इम्यूनो सिस्टम इज द सेल्स, मॉलिक्यूल्स, or anyway cell and molecules, at the end with cell and molecules. Suppose any one molecule, some molecule is there, now this molecule is known as immune system. But ये molecule को अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक किया तो उसका साथ जाके कैसे बाइंड होता है, उसका साथ इंटरेक्शन कैसे करता है, ठीक है? जो सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द कंट्रोल में होता है एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यूनो सिस्टम towards a pathogen is equal to immunoresponse. Clear? Any doubt? Okay, आप भूल भी जाओगे तो फिर नेक्स्ट याद कराऊंगा, टेंशन मत लो, पर हाँ डाउट नहीं होनी है। Any doubt from last class who were present online? Kalyani is no doubt. Eighth is doubt, no doubt. Purna is no doubt. What about others? Only 3. There are 8 participants rather than 7. What about Mira? मुझसे पूछ रहे हो ना बता रहे हो? नहीं बता रहे हो तो पूछना नहीं। ये क्लास आपका है, आ सकते हो। हाँ मेरा चैम्बर मैंने सिर्फ पूछ के ना, विकर दैट इज माय स्पेस। ओके मैं कुछ कर रहा होगा, कुछ बीच में रुको 2 मिनट बोल सकता हूँ। ये क्लास आपके, आपको पढ़ा रहा हूँ, आ जाना चुपचाप, आके बिना किसी को चुपचाप बैठ जाना। ओके लगता है मैराथन रेस करके आई है कीर्ति। So then we had started another the topic, we had proceed on the and we had started about pathogen, infectious agent. Okay, in infectious agent
I have just described last class that biomass of the earth. Okay, सबसे ज्यादा बायोमास किसका है? प्लांट का है, उसके बाद है बैक्टीरिया, उसके बाद फंगाई, ऐसे करते 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 ह्यूमन से भी कम है, पर ह्यूमन का 0.01 gigaton of carbon, whereas virus is 0.04. Okay, then we have started with the bacteria. Again I will start with this one. Okay, okay, so what do you mean by bacteria? These are the prokaryotes. We know about that, single cell organism and prokaryote. Okay, now what will be size? Size equal to 0.5 to 2 micron, 0.5 to 2 micron in diameter. They have different shapes. It may be round shape, foci shape, spiral shape, rod shape. Okay, it may be gram positive, it may be gram negative. All these things are there. Now, how much amount of bacteria present on the earth? 5 million trillion trillion. 5 million trillion trillion. By the way, मैंने उसको टास्क दिया है. It's her responsibility to complete this one. Why we are focusing to her us? Rather than focus, not focusing to me. It is completely unfair situation. खुद को डाइवर्ट मत करो कहीं पे भी. ओके, आप लोग का एज में मुंबई लोकल ट्रेन में खड़ा होकर नोवेल पढ़ लेता था. आधा घंटा लगता कहीं जाने के लिए, उस टाइम उठा के पढ़ लेता था. कोई आ रहा है, कोई आउट डज इट रियल मैटर, मुझे इस स्टेशन में उतरना, दैट्स ऑल. कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो रहा है, मेरा साथ बहुत सारा चीज हो रहा है, मुझे सभी के बारे में जानना जरूरी नहीं है. जानोगा तो याद भी नहीं रख पाऊंगे. स्टोरेज कितना करोगे आप? आपको क्या रूम दूंगा उसको स्टोर करो, जो मिलेगा उसको स्टोर थोड़ी करोगे आप. लिमिटेड है आपका. सारे चीज देख के डाइवर्ट मत करो. अब वहां पे देखा ना, डेफिनेटली आपका कंसेप्ट वहां पे डाइवर्ट हुआ. उतना टाइम देखा, उतना मेमोरी तो आपका यूज हुआ. जस्ट आप नेटवर्क का हर दिन का आपका मेमोरी फिक्स है. जैसा आपको नेटवर्क में डेटा मिलता है ना, उतना ही आपका, इतना ही आप काम कर सकते हो दिन में, इतना आप मेमोराइज कर सकते हो. तो मैं पहले क्लास बोला, डाइवर्ट खुद को मत करो, तो सारे को फोकस करो. आप वहां पे थोड़ा देखे, मतलब मेमोरी में तो गया ना, नहीं, कंसंट्रेट एंड डाइवर्ट, जिसका काम वो करने दो. ओके, सो देखो आप सारे अच्छे बच्चों, चैनलाइज का जरूरत है, डायरेक्शन का, एंड दैट इज माय ड्यूटी. ये मत सोचो मैं आपको क्लास फर्स्ट सेकंड जैसा हाथ पकड़ने. आई विल मेक श्योर यू विल इन राइट डायरेक्शन. ओके, देन यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ. क्लियर? सो हाँ, come back. So where we are there? So these are the gram positive bacteria, gram positive, gram negative, all these things will be there. Clear? Okay. So according to their chemical constitution in the cell wall, you know about the gram positive, gram negative there. Now how much bacteria is present? 5 million trillion trillion. ये याद रखो. कोई पूछेगा या घर में जाके बोलोगे, कोई कर रहा है ना आपका भाई, तुम्हें पता है, तुम्हें खबर है 5 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द अर्थ, तू क्या कर क्या रहा है, ऐसे ऐसे हेल्थ हाइजीन फैला रहे हैं. ये जरूरत पड़ेगा. राधे तो फैन ऊपर से नीचे ऑफ करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो करेगी एक्सपेरिमेंट करते करते. इतना तो समझ में आएगा उसको, कोई ना कोई बंद तो करके आएगी. ओके, सो 5 million trillion are present on the earth. Now they are either invite to the host or produce toxin. Generally what happen when they enter to the host cell? Okay, बोला था ना पहले क्या करेंगे, खाना खाएंगे, they are neutrate their cell, then size बढ़ाएंगे, बड़ा होंगे, then reproduction करेंगे. So बात है कि when they are eating food and then they are grow, at that time what happen, they will secrete some kind of toxins. Okay, their byproduct. वो अंदर में रहेंगे तो सुसु पट्टी सब कुछ तो करेंगे ही ना. ऑफ कोर्स उनका भी जो वेस्ट मैटर है वो करेंगे ना, अंदर में नहीं करेंगे. दैट इज टॉक्सिन टू यू, दैट्स ऑल.
बैक्टीरिया भी करता है ना, मतलब उसका एक्सक्रीशन सारे कुछ जो वेस्ट मैटर सारा बाहर निकलता है. So that is the case. Now they are associated 3D dot disease and death. They are associated 3D. True pathogen or opportunistic pathogen. Who will describe this one? What do you mean by true pathogen or opportunistic pathogen? What does it mean by true pathogen? जैसे कोरोना वायरस या साल्मोनेला टाइप इंटर करेंगे मतलब आपको डिसीज होंगे. ट्रू पैथोजन. अदर्स आर opportunistic pathogen. I will discuss on that. वो अंदर में रहेंगे, चुपचाप सोते रहेंगे, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिसीज करेंगे. अपॉर्चुनिटी देने से एक्सप्रेस करना है, अपॉर्चुनिटी. ओके. होना चाहिए. हम लोग भी शांत रहना, जिसका अपॉर्चुनिटी कूदते कूदते. एनीवे हर इंसान अपॉर्चुनिस्टिक होता है. ओके. एनीवे there are different shapes are there. They may be rod shape, they may be spiral shape, they may be cookie shape. According to them, their different name is also there. Now this has to, we have to remember what हम किसको जनरल नॉलेज के लिए 10 to the power 10 बैक्टीरिया. जस्ट रिमेंबर 10 to the 10 means 1000 crore. 1000 crore bacteria is in your right. 1000 crore, not 1000 exactly, 100 crore. 10 to the 10 means 100. That much of bacteria is found on your mouth. Look how much that is. Now 10 to the power 12 bacteria in your skin, okay, and 10 to the power 14 bacteria, they are found in a gastrointestinal tract. Now those who are present in the gastrointestinal tract, then your mouth or skin, they are mutualism. They are also providing supports. They are providing also some, they are beneficial bacteria, okay, who were present in inside your gut. Yeah, inside your gut. Gut means digestive system. They generally help for digestion and assimilation of food. Clear? So there are some different bacterial diseases are there. They may be cholera, typhoid, pneumonia, diphtheria, whooping cough, tuberculosis, anthrax, tetanus, variety of disease. Apart from this, this is some list of disease. There is a huge list of disease. Ton of disease are there, but I am showing here only 1 gram. Tons of disease are there, but I'm just showing 1 or 2 gram. Okay, how much bacterial disease are there? Anyway, there are many others are there. Now I will start with virus. Okay, till this much I have completed last class. टाइम ले आओ क्योंकि मेरा जनरली 5 to 10 मिनट लास्ट क्लास डिस्कशन में मेरा जाएंगे डैम श्योर है, क्योंकि आपको बाय वर्चुअल याद आ जाएंगे क्या हमने पढ़े थे, तभी हम कोरिलेट कर पाएंगे ना. एकदम यहाँ से स्टार्ट करो, समझ नहीं पाओगे. क्लियर? सो हम स्टार्ट करेंगे वायरस. सो वायरस मतलब सोचे कौन बताएंगे? चलो आज मैं पूछता हूँ आरती को. क्या मेरा क्वेश्चन क्या था? सोनू बताओ क्वेश्चन क्या था? फिर क्वेश्चन किसको पूछूंगा बोला मैंने क्वेश्चन किसको पूछूंगा बोला. हाँ, इसका लास्ट में तो सुना ही नहीं दे रहा है, तो मैं कोई पर्टिकुलर नाम लेके बोला. मैंने बोला वायरस मतलब सूच है, ये क्वेश्चन में पूछूंगा आरती को. आप ही आरती हो ना इस क्लास में, दूसरा कोई है? आगे आके बैठ जाओ, पीछे सुनाई नहीं दे रहा है तो आगे. तीनों यहीं पे बैठो, जल्दी 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 क्विक. कीर्ति यहीं पे चले जाओ. अरे कोई बात नहीं, आ जाओ. हाँ बोलो बोलो मैडम. वायरस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी कन्वर्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आप बोलो. व्हिच कंटेन आरएनए? I will take lambda virus which contain DNA. Psi into 174, that is also 5 into 174, that is also DNA.
M13, that is also DNA. No, infectious disease, non-infectious disease. ये सारे आपको पूछा जाएगा, रादर देन पिज्जा में कितना टॉपिंग होते हैं, और इट विल डिटरमाइन योर इंटेलेक्चुअलिटी। देखो अभी वायरस का पूरा स्प्रेड हो रहा है, हमने कभी सोचा नहीं थोड़ा वायरस का पढ़ ले। देखो बात है कि डाइवर्ट कहाँ, फोकस कहाँ करते हैं, फोकस। आपने हीरो तो देख रहा होगा, हीरो गायब मोड ऑन करके कहता है ना सीरियल, नहीं देख रहे हो तो वेरी गुड। उसमें तो फोकस एंड बिलीव, जितना जरूरी है उस चीज को, वो जरूरी है। वायरस के बारे में हमको जानना जरूरी है। अभी तो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट नहीं, एवरीवन को जानना जरूरी है, जो भी बीएससी एमएससी पढ़ रहा है, भले वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, किसी का भी हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है। और डेम श्योर है कुछ कंप्यूटर बच्चे वायरस से बता सकते, वो कुछ बच्चे। चलो मैं बता देता हूँ, ओके क्लास में। सो viruses are obligate intracellular organism. What do you mean by obligate? Huh? Sorry? Strict. Compulsory. What do you mean by facultative? Optional. Okay. They are obligate intracellular organism. That means ये कंपल्सरी अंदर जाके ही काम करेंगे, बाहर ही कुछ नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरिया बाहर ही कर सकता है। They hijack the host cell's biosynthetic and replicative apparatus and proliferate the replication. Yeah, Kalyan replicate inside only body. Very good. So these are the intracellular parasites, the obligate parasites. Rather than you can say that outside the host cell, they cannot do anything, even if they replication. Outside the host cell, they are nothing. But when enter to the host cell, as I told you, virus is not attacking for feeding. खाने के लिए वायरस कभी अटैक नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, इसको छोड़ के खाना नहीं खाता है, इसको खाने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जब वो अटैक करता है फॉर ओनली रिप्रोडक्शन, नॉट फॉर फीडिंग पर्पज। ओके, व्हेन इट एंटर टू द होस्ट, एट फर्स्ट इट हाईजैक द होस्ट मशीनरी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, सारे चीज उसके पास कुछ है ही नहीं, उसका पास ये सारे सिस्टम है ही नहीं। समझ रहे? तो कुछ लोग होते हैं जब निकलते हैं, जैसे मैं आया था यहाँ पे बैग लेके आ गया था गुजरात, ओनली एक एयर बैग लेके गुजरात 2009 में। फिर सारे मेरा फ्रेंड के घर से सारे कुछ यूज किया, खाया, फिर मैं खुद धीरे धीरे डेवलप किए। सेम घुस जाएंगे, जो करना है करेंगे, सभी इसका लेके। और कुछ लोग होते हैं, मेरा फ्रेंड आया था आशुतोष श्रीवास्तव यूपी से, सारे लेके आया था बैग में, एक गैस, छोटा वाला गैस, थाली, ये सारा होता है ना, 2 साल का ज्वाइन किया था वो सारे कुछ लेके आया था मैं। हाँ, दिस इज फैकल्टेटिव, आई एम ऑब्लिगेट दैट टाइम। Anyway, it has not anything within this. So when it enter to the host, it will hijack the host machinery towards all the metabolisms. Okay, it may be replication, it may be transcription, it may be translation. These are 3 central dogma of your life. It is that. Now, every virus needs particular host for the particular host. Please remember, every virus need particular host. जैसे कि कोरोना वायरस को चाहिए इंसान का लंग्स, इंसान चाहिए, और इंसान ओनली नहीं, उसका लंग्स ही चाहिए। हाँ, और रिसेप्टर स्पेसिफिक हुआ ना, इसलिए तो स्पेसिफिक है, नहीं तो स्पेसिफिक नहीं होगा ना। दैट्स व्हाई दैट इज स्पेसिफिक। हाँ,
So every virus, जैसे plant mosaic virus, tomato mosaic virus, it will infect tomato leaves only. Okay, there are some other virus. That is, viruses are specific to the specific host cell. They are specific, very, very, very specific. Now smaller than bacteria. That's why it cannot be visualized in a normal microscope, compound microscope. It required to visualize electron microscope. Okay. Now, generally what happen? How it is made up of? Virus is made up of a nuclear genome. Okay. It consists of genome. The genome may be DNA, may be RNA, may be single stranded, may be double stranded. 4 variant. It may be DNA. DNA is either single stranded, just like M13. DNA may be double stranded, just like your lambda. It may be single stranded RNA, just like your corona, dengue. It may be double stranded, just like polio, like that. All the things. That means all possibilities is there. The genetic material is DNA, RNA, single strand, double strand. 4 different possibilities are there. And surrounded by a protein sheath, protein coat, yeah, protein sheath. Inside there is only genetic material surrounded by a protein coat. That's all. According to protein code, that is also different. That may icosahedral, hedral, all the things. Anyway, we are not discussing about generalized structure of virus. That's why I'm skipping that one. So, what is structure of virus? Genome surrounded by protein sheath, yeah, protein coat. Am I clear? Okay. Now, virus cause many diseases, ranges from common cold to COVID. Common cold is common, COVID is more common now. Okay, anyway, common cold to the most dangerous is your AIDS, yeah, COVID. Anyway, now look at that picture. There are some different viruses I have shown here in the picture. मेरा बेटू कहाँ से आ गया? CGRP. Okay. Look at, there are some viruses. There is coronavirus, there is influenza, there is bacteria phage, there are Ebola virus, hepatitis virus. Look at, there are different sizes are there. You cannot say that is spiral. They cannot say that is circular. It is also this kind of Ebola virus. Look at that, how it is looking. Okay. So now what are the disease? When it comes to the disease of coronavirus, there is no system in your body cannot be infected with virus. No system, no organ. Every organ can be infected with virus. It may be brain, it may be intestine, it may be lungs, it may be eye, it may be nose, it may be your anywhere. Okay. होगा, इसलिए तो इन्फेक्शन कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाता. वहीं पर उसका रिसेप्टर है, इसलिए तो वहीं पे पहुंचता है, बाकी कहीं पे नहीं पहुंचता है. यही तो स्पेशलिटी है. बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन हुआ पूरा बॉडी में आपको हो सकता है, कहीं से मिलेगा, पर वायरस नहीं मिलेगी. जैसे आपको कोरोना वायरस ब्लड में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए वहां से लेते हो लोग, स्वाब से ही लेते हैं कि इधर प्रोसेस यहीं पे रहेंगे वो. वो तो डिफरेंट होता है. देखो, इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन रिलीज, साइटोकाइन स्ट्रोम होता है. इन केस ऑफ कोरोना वायरस एक न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एक मॉलिक्यूल है. जब इंटर करता है वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है. वो सिक्रेशन से क्या होता है, आपका टी सेल बी सेल रेगुलेशन बिगड़ जाता है. साइटोकाइन बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है. तो साइटोकाइन स्ट्रोम से इस साइटोकाइन स्ट्रोम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट का इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ जाता है, डेथ हो जाता है. साइटोकाइन ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का लेवल कम होना बॉडी में. वो तो मैकेनिज्म है, पर ये
what you call not a general mechanism, it is general mechanism, not specific. जैसे एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, पर एक्सीडेंट हुआ मतलब डेथ नहीं हो जाएगा, टूट भी सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको जनरलाइज मतलब सेफ्टी हम नहीं बनाएंगे। साइक्लोकाइन स्ट्रोम हो गया मतलब क्या इन्फ्लेमेशन हो गया तो मर जाएगा, इन्फ्लेमेशन आपको भी होगा। आओ एक लगा तो वहीं पे जो जलन कर दैट इज इन्फ्लेमेशन। आप लोग इन्फ्लेमेशन होकर मर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन से मरते हैं, पर इन्फ्लेमेशन मरने का रीजन नहीं होता है। आपको कोई चींटी ने काटा, वहीं पे जलन कर रहा है ना, दैट इज आल्सो इन्फ्लेमेशन, वहीं पे भी साइटोकाइन सिक्रेशन होता है। अब मुझे बताओ, आपको कोई टीचर ने मारा है? नहीं मारा होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े ही नहीं होंगे। हमको मारा था टीचर ने, इसके टेप खड़े हो, टेबल का ऊपर धड़ 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 सीधा टेबल से नीचे तक। घर में जाते थे, क्या हुआ पापा पूछेंगे, थोड़ा टेंशन हो रहा है, इधर दो लगाएंगे, एकदम टेंशन चला जाएगा। टेंशन हो रहा है, इतने छोटे बच्चों में टेंशन हो रहा है बोल रहे हो, ऐसा हम बढ़े क्योंकि एकदम गांव का थे, इतना स्टडी का नहीं था। क्लास 8, 9, 10 4 किलोमीटर चल के में 4 किलोमीटर स्कूल था, आना जाने के लिए चल के जाना पड़ता था। तो बीएससी एमएससी बाहर निकल के थोड़ा पढ़ाई किए, वो भी गवर्नमेंट में ही है। एनीवे बात वो नहीं है, बात है कि मैंने हमको मारते थे टीचर ने, देखेंगे मारने से पे रेड कलर हो जाता है, व्हाट डज व्हाइट, आप भी किसको लगाएंगे ना स्वेलिंग हो जाता है, ये तो हो जाता है ना रेड 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 क्यों? एक तो हमने जहां पे मारे, जहां पे सपोज हाथ में कोई स्टिक में आपको मारा, वो हाथ का स्टिक में जिस एरिया में स्टिक आके पड़ा, वहां पे एनर्जी क्या हीट क्रिएट हुआ, हीट क्रिएट होने से क्या होगा, सारे सेल मर जाएंगे, क्योंकि 37 आपका नॉर्मल टेम्परेचर 45 एबव या 50 एबव जाएंगे तो सेल मर जाएंगे। वहां पे कम से कम जब मारते हैं ना हम, 80 से 100 डिग्री तो हीट जनरेट होता है सेल्सियस तक, 80 डिग्री से लेके, इसलिए तो हमको दुखता है, इतना हीट जनरेट होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, ज्यादा टाइम नहीं तो जल जाता। तो उसके चलते क्या होता है, पूरा वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नहीं सेल तो मर जाएंगे, सारे ब्लड वहीं पे ट्रांसफर होते हैं ठंडा करने के लिए, तो उसे रेड हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए जहां पे पड़ता है, कि सारे ब्लड की लिक्विड आपका हुई है ना, पानी आना चाहिए ना वहाँ पे ठंडा करने के लिए, डार्क से वहां पे क्या होता है, रेडिश होता है। कहीं मारते हैं, मारने का और क्या होता है, रेड हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसके चलते में ये सारा रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स का। जलने के बाद पानी जमा हो जाता है, देखा होगा आपने, क्यों पानी जमा हो जाता है ना, पूरा वाटर वहीं पे ट्रांसपोर्ट है, क्या आते हैं इसको ठंडा करने के लिए। हाँ ड्यूरिंग आप कोई जल गया मतलब ऐसे बनता नहीं, क्या बोलते उसको, पानी क्या के नहीं बन जाता है कहीं, मतलब क्या बोलते उसको, आई डोंट नो, कहीं हाथ हाथ में आपको कोई जल गया, कुछ गिर गया तो एक पानी वाला फोटका बन जाता है, मतलब सारे ब्लड का पानी वहीं पे आ जाता है उसको ठंडा करने के लिए। एग्जैक्टली वो मैकेनिज्म बॉडी का है। Anyway, so there are different viral diseases are there, it may be cardiovascular, anything. Anyway, I have already uploaded all the lecture PPTs in your class, what you call for content, please collect them and read them, okay, before come to next class, all these things are there, and same day I will give you the attendance, same day आपको कल का अटेंडेंस कल का मिल जाएगा, आज का मिल जाएगा, तो आपको वीडियो भी आपको वहां से लिख सकते हो, मैं नहीं होता आप एक बार कर सकते हो, पढ़ लो एक बार, इट्स माय रिक्वेस्ट या सजेशन, ओके दोनों है। एक बार टाइम निकल के जो मैं पढ़ाता हूँ, एक बार घर जाके आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा में पढ़ लो, कभी भूलोगे नहीं आप। अगर आज का काम कल के लिए छोड़ोगे फिर परसों याद नहीं होंगे, ये डैम श्योर है। Anyway, so now I will come to the third category, protozoa. Now these protozoa are, they are generally unicellular eukaryotes, their size more than 2 miles, somewhat they are somewhat larger size, okay, the 2 mm wide range, different sizes are there, they are different type as well, they may be flagellate, they may be amoid, they may be ciliate, they may be sporoid, different shapes are there. Anyway, do you know any protozoa, name of any protozoa जो आपको डिसीज कर रहा है? अमीबा,
प्लाज्मोडियम वाइवक्स, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, एक मलेरिया होता है जो नॉर्मल मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवक्स। उसका दूसरा स्पेसीज है प्लाज्मोडियम फैसिलिफोरम जो ब्रेन मलेरिया करता है। ओके, प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। ना एमाइबा एंटाइमोबा हिस्टोलिटिका जो आपको डिसेंट्री करता है, लूज मोशन नहीं होता पेट दुख के, दैट इज एंटाइमोबा हिस्टोलिटिका, दैट इज आल्सो देयर। ओके, नाउ देयर इज अनदर इज दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ओके, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इट इज जनरली एसोसिएटेड विद फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, तो वाजिना में कॉलोनाइज कर देंगे, वहां पे क्या बोलते हैं, होल कर देंगे, पंचर पंचर कर देंगे, वहां ब्लीडिंग होंगे, मुश्किल डिसीज है, जल्दी सही नहीं होते। ओके, सो इट्स रिक्वेस्ट कहीं डैम फैम साइड में जाएंगे तो क्लीन क्लियर क्लीन रहना। डंपिंग साइड ज्यादा होते हैं जनरली, खराब वाटर में सारे चीज में होते हैं, सो लड़की लोग के लिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। एनीवे, देर आर ऑल्सो प्रोटोजोआन डिसीज, देर आर एमोबायोसिस, डायरिया, and the right hand side is the causative organism. From diarrhea there is two protozoa, giardia, isoponia, trypanosomiasis, there is also, there is leishmaniasis. Okay, there is trichomoniasis, malaria, toxoplasmosis, Bacillus dysentery, all these things are there. Okay, you need not to remember all the name, but please remember one or two name if possible, because ओके, मैक्रोफेज से बड़ा है, फिर मैक्रो खा पाएगा नहीं पाएगा पूछ रहे हो, ये ना। कितना एग्जाम्पल चाहिए आपको? पहाड़ आपसे बड़ा है, वहां से आप सैंड लेके घर बनाते हो ना, जैसे वायरस, वायरस तो आपका सेल बड़ा है तो फिर भी घुस नहीं जाता है, उससे बड़ा है तो अच्छा है ना। देखो उससे छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरस या बैक्टीरिया आपका सेल से छोटे हैं घुस जाते हैं, उससे बड़ा है तो और अच्छा है ना। ककड़ी आपसे छोटा है, ककड़ी ककड़ी खीरा तो अच्छा है ना, आप आराम से खा सकते हो। Macrophage, B cells and dendritic cells, all these three are called antigen presenting cells. तो तीनों के बारे में आज से डिस्कशन में करूंगा, वो ऐसे ही लेते हैं, इसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, फेगो की तरह पूरा अंदर कर देते हैं, पर ये यूनिवर्सल मैकेनिज्म नहीं है। मैक्रोफेज आल्सो सीक्रेट समथिंग, इधर हम खा सकते हैं, नहीं तो गोली भी मार सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो इनका पास केमिकल मैसेंजर से छोड़ेंगे उसका ऊपर, वो वहां पर केमिकल जाएगा, डिग्रेड होगा वो, chlorogenic enzymes, right? Anyway, now I will come to the fourth one, sorry, that is worms. Worms means helminthes. Okay, they are multicellular animals. These are animals and multicellulars. Okay, now some of they are parasite. Mostly they are parasite, not some of. Mostly they are parasite. Generally, then eggs are small enough. एग बहुत छोटे, आपका पानी में खाने में चला जाएगा पेट में, आपको पता नहीं चलेंगे, बहुत छोटे हैं। ओके, नाउ दे when enter to your intestine, they will hatch them. Some egg also migrate through your foot या feet. आप खाली पैर में चल रहे हो ग्रास में, उनका एग आपको उसमें भी माइग्रेट कर लेंगे, कुछ आपका हेलमिंथस वहां से भी घुस जाएंगे पैर में, मतलब इतना छोटे है वो। Okay, so there are different class, either nematode, nematode को राउंड वर्म, राउंड वर्म मतलब नहीं है राउंड होंगे, राउंड वर्म मतलब ये राउंड उनका है सरफेस, ये देखो राउंड है ना, ऐसे टाइप का वर्म होता है राउंड वर्म। ओके, कोई बच्चे लोग का अगर पोर्टिकल्स में देखे होंगे छोटा छोटा आते हैं सारे राउंड वर्म ही, एस्केरिस बोलते हैं उसको, एस्केरिस का स्पीसीज है। उनका जो बॉडी का जो बाहर का ये ना राउंड होते हैं, पेन जैसा सोचो, पेन का सरफेस कैसा राउंड है ना, राउंड वर्म मतलब नहीं बॉल जैसा दिखेंगे वो। क्लियर? देयर मे बी
ट्रेमाटोड्स फ्लैट वर्म में से फ्लैट होंगे, आपका बेल्ट जैसा फ्लैट होता ना बेल्ट। दे मे बी कैस्टोर्स टेप वर्म, टेप जैसा लगे पूरा। एक फ्लैट वर्म मतलब एकदम ये आपका टेप वर्म है, आपका जो बेल्ट है ना, पर फ्लैट वर्म मतलब थोड़ा फ्लैट होगा, एकदम राउंड नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा फ्लैट होंगे। दे मे बी tapeworm, flatworm, all of them. Menologus, that is also flatworm. All these, there are 4 different classes are there, and all of the classes they can cause you disease. What are the disease? The disease is hookworm disease. Generally बच्चे लोग को होता है ये hookworm disease. Okay, generally बच्चे लोग जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होता है 4-5 साल से नीचे, उनको होता है छोटा सा हुक, उनमें निकल देखा होगा आपने, किसी का देखा है? आपका खुद का भी एक्सपीरियंस किए होंगे जो बच्चे होंगे, नहीं हो रहा था तो चलो अच्छा है। अभी कभी आपने जब छोटे थे आपका टॉयलेट में नोटिस किया है छोटा 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 वर्म थे? नहीं किया? इतना सारा, इतना, हाँ इतना सारा कौन नोटिस कर? सर हम पापा ने मतलब मम्मी ने मोबाइल रखे थे, मोबाइल ही हम देखते थे बस हमेशा। हाँ आजकल का बच्चे, माय डॉटर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग, वो सुसु जो खाना जो भी करे बस मोबाइल के साथ, कुछ हो रहा है उसको समझ भी नहीं आ रहा, बस ऐसे ही होते हैं। एनीवे कोई नोटिस करो बच्चे में आते हैं छोटा 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 व्हाइट कलर का, एकदम छोटे छोटे, ये साइज के होंगे, आप पास में जाके देखो दिखेगा। गांव में तो होता है कि जो मीठा खाते रहते हैं, ये नहीं होता है, पानी ऐसे ही पीते हैं, गांव में तो होता है, हमारा तो काफी होता है, होता था बचपन जब थे, बड़े बड़े भी आते थे यहाँ साइज के। तो टॉयलेट में मुझे याद है क्लास 4th या 5th में इतना बड़ा, कम से कम 20 सेंटीमीटर होंगे, एक लंबा सा 20 सेंटीमीटर, उसको देख डर के मैं भाग गया मम्मी को बुलाने, सांप घर में आ गया बोल के। क्लास मतलब 4-5 साल समझ में नहीं आता है ना। Anyway, there are others are also there, different disease, then eye worm disease, कभी कभी आंख में जाके भी करते हैं। ये सारे पीपीटी आपका पास है, आप थोड़ा देख लो डिसीज का नाम पे, थोड़ा ये बोल नहीं रहा सारे को याद करो, पर एक बार पढ़ लो, कुछ याद रहेंगे तो होंगे, नहीं तो किड्स क्लियर, तो हमको एटलीस्ट पता है, कोई कभी कोरिलेट कर सकते हैं डिसीज, कोई बोला हाँ हाँ ऐसा तो एक डिसीज है, ऐसा ना एकदम आपको नया लगेंगे। हाँ ये नहीं बोला मैं एग्जाम में पूछूंगा नहीं, 2 डिसीज बताओ 3 डिसीज बताओ, क्योंकि हाँ वायरस पूछ सकता हूँ, बैक्टीरिया वार्म तो याद नहीं रहेंगे ना। नाउ बैक्टीरिया, फंगस, देर आर, आई थिंक आई हैव स्किप फंगस। There are also different fungus are there. There is also a disease known as prions. Another one, bacteria, fungus, virus, protozoa, helminthes. 5. The another class on prions. Prions is some protein molecules, misfolding protein molecules. They may also transmitted from one to others by air, yeah, by touch something, and they may also create some kind of disease. Okay, now their prions are proteinous infectious particles. They are infectious particles. They have not any DNA, RNA, genome. They are not living as well, which cause neurodegenerative disease. Only they will attack to the your central nervous system or peripheral nervous system, and they may create that kind of disease. Sorry? हाँ बहुत सारा डिसीज है, मोस्ट प्रियंस आर दिस आर फेटल, दे आर नॉट लेथल, फेटल, caused by misfolding of the prion protein known as PRP, capital P, small r, P. This is known as prion protein, medical language में वही लिखते हैं लोग। Now prions spread silently across the person's brain, जनरली ब्रेन में पहुंच जाएगा आराम से ब्लड का साथ, और वहीं पे रहेगा, वहीं पे रह के वो क्या करेगा, डिसीज क्रिएट करेगा। ओके, ये पीपीटी आपको मिलेंगे, लिखो मत, पीपीटी आपके पास है ऑलरेडी, मैं शेयर कर चुका हूं। ओके, अभी खोल के देख सकता हूं, पीपीटी पूरा वहीं पे है। नाउ सम डिसीज, अजीब गरीब नाम है डिसीज लोग, इस डिसीज का,
ओके, मैं सारे बाहर का, जनरल इंडिया में इतना अच्छा होता, इतना ज्यादा नहीं, यूरोपियन कंट्री में डिसीज होते हैं जनरली, दैट्स व्हाई उनका नाम के हिसाब से। एक एक क्रूजिक जैकब डिसीज, CJD, एक एक वेरिएंट क्रूजिक जैकब, उसका ही वेरिएंट है। तीसरा है फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, वो रेयर डिसीज है। चौथा है जर्मन, जर्मन में फाउंड किया होगा पहली बार, ऐसे जस्टमन्स, जर्मन में हुआ था, जस्टमन्स सिंड्रोम। ये अलग अलग सिंड्रोम है, बोवाइन स्पॉन्डिलोसिस एंड्रोफाइलस, डिफरेंट डिफरेंट आर देयर, जनरली ऑल आर, ये डिसीज, ऑल द डिसीज आर न्यूरो डिजेनरेटिव, मतलब आपका ब्रेन सेल को खराब कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ओके, अल्जाइमर इज सम डिफरेंट, दिस इज नॉट द प्रियन डिसीज। अल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन का पोर्शन ये होता है, कोई प्रोटीन, दो चार प्रोटीन है, आपका बॉडी के प्रोटीन सिक्रेशन नहीं होते, और प्रोटीन सिक्रेशन सही से नहीं होते, प्रोटीन का बन जाते हैं, बन जाने का बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, वहां पे उसका फोल्डिंग होगा, रिफोल्डिंग होगा, प्रोटीन का क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन वहीं पे नहीं हो पाता है, तो मिसफोल्ड हो जाते हैं, तो प्रोटीन पहुंचता नहीं है, इसलिए वो सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये फॉरेन प्रोटीन है, ये बाहर का प्रोटीन है, और इन्फेक्शियस है, आपका ब्लड से दूसरा किसी का ब्लड में चले जाएंगे अगर ब्लड टच हुआ, पर आपका ये प्रोटीन वहां पे नहीं घुसेंगे, ये जो मिसफोल्ड प्रोटीन ऑफ योर्स, क्लियर। सो दीज आर ऑल अबाउट पैथोजेंस। पैथोजन आपको क्वेश्चन में अगर आएंगे, 8 मार्क में भी आ सकता है, 6 मार्क भी आ सकता है, 4 मार्क भी आ सकता है। अगर 8 मार्क में आएंगे, आपको व्हाट इज पैथोजन, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन, तो पैथोजन लिखोगे, पांच पांच का नहीं, इसको करने का जो प्लान छोड़ सकते हो, 5 का क्लासिफिकेशन करना है। पहला 1-2 लाइन बैक्टीरिया बारे में लिखना है, उसका 1-2 डिसीज का नाम लिखना है, 2 डिसीज का नाम लिखना है, क्लियर, समझ गए। अगर 8 मार्क में आएंगे, क्या लिखोगे, व्हाट इज पैथोजन, इट्स क्लासिफिकेशन, पैथोजन क्या लिखोगे, उसके लिए 1 मार्क होगा, क्लासिफिकेशन 1 मार्क होगा, 2 मार्क हुआ, बाकी 5 के लिए 1-1 मार्क होंगे, 7 मार्क हुआ। एडिशनल लिखूंगा, कोई कुछ लिखा है तो और 1 मार्क मिलेगा, 8 मार्क, क्लियर। क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस करूंगा, जहां पे मुझे चाहिए वहां पे बोलूंगा, एक क्वेश्चन आपको ये मार्क में आ सकता है। अगर 6 मार्क में आएंगे, क्लासिफिकेशन नहीं होगी, व्हाट इज पैथोजन नहीं पूछे, पैथोजन क्लासिफिकेशन ओनली रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेगा आपका, ओनली क्लासिफिकेशन है पैथोजन, तो इतने आप लिखोगे, जो 5 वाला। 4 मार्क है, कोई एक के बारे में पूछा जाएगा, ओके। और इसके अलावा इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, पर 2-2 डिसीज सभी के याद रखना, मिनिमम 2 डिसीज, और आपको याद भी होंगे, फंगस का याद है, वायरस याद है, बैक्टीरिया याद है, प्रोटोजोआ भी याद है, सारे आपको याद होंगे, इतना बड़ा नहीं है, दिस नॉट ए बिग डील, ओके। ये आप अगर रख दोगे ब्रेन में तो आपको हो जाएंगे, आपका पीपीटी अच्छे दिखेंगे, ओके। ह्यूमन इन्फेक्शियस डिसीज, देयर 5 क्लासिफिकेशन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, उसका पूरा डिसीज है, दिस इज द समरी, क्लियर। So I think I will stop here. Okay. So we have completed the pathogen. Next class, we will discuss about immunosystem. अभी तो immune system नाम पढ़े, definition for immune system we will start. Next class is immune system. Okay. Till now, do you have any question, guys? Who were present online? देखो, नो का 2 मतलब होता है, इधर आपने कुछ नहीं समझा है, दूसरा आपने कुछ समझा ही नहीं है। I think I will share you now attendance link. Please fill it now. For very attendance link, please wait. जो भी ऑनलाइन है, कुछ तो क्वेश्चन पूछो, चुपचाप सुनते हो। कल्याणी, नो डाउट सर, मीरा क्लियर, तीर्थ क्लियर, चलो गुड। Just wait, I will share your attendance.
go to your, इसका सोनू का अभी तो सही नहीं हुआ, क्या हो मोबाइल आईडी गड़बड़ है? मिला लिंक? मिला होगा देखो। ओके, डिड यू गेट द लिंक हु वर प्रेजेंट ऑनलाइन? मिल गया? चलो ओके, होगा ओपन। सर ओपन नहीं हो नहीं रहा है? हो रहा। वेट, ओके, नाउ आई हैव टू, अच्छा आप लोग का लैब है अभी? लैब से पर पूरी मैडम ने लैब पे नहीं बुलाया। नहीं खुल रहा है लिंक? वेट, आई एम शेयरिंग न्यू लिंक, आई एम शेयरिंग न्यू लिंक, प्लीज वेट। I think I have sent you the wrong link. Now this link is, please go to the new link. Please. Just a minute. Please try now. Done. Now it is opening. Okay, thank you. Thank you for listening me. If any type you have any doubt, you can ask me. Okay, I will be happy to answer you. Thank you. All the best. Have a great day. Bye bye.